Good morning, students. But in the last two lectures, last two videos, I have sent you Ohm's law experiment and also in a second video by performing the Ohm's law. In that we have seen we are connecting one constant resistance. Resistance can be of different magnitudes, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, right? So these resistances we can connect in two ways, one series and one parallel combinations. As I have sent you the notes already, that series combination and a parallel combination. What is the meaning of series combination? Series combination definition is that when we connect two or more resistances, 3 can be, 4 can be, end to end, so that same current flows through them. Same current. Note the first point, the current is same, I is same in it, and end-to-end combination is there, right? So what is the meaning of end-to-end? We have one resistor and it has two ends, okay? Now its one end is connected with the second one, and this end is connected to the third one. They are called end-to-end combinations. From this voltmeter, when we close the key, one current which will flow out from this battery, that the same current will go from the all. Everybody have a same current. If I will make to clear this in your own language, you all know that you're going in a field, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਿਊਬਲ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲੋ। ਇੱਧਰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਕਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, टाइट है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। पर अगर ये सीरीज च ने तो जितना पानी इधरों फ्लो होया उतना इधरों होएगा, उतना इधरों होगा। सेम वाटर बेस फ्लो, सेम इज वट एवर इज द रेजिस्टेंस, कोई घट कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पैंदा। जितना एक रजिस्टर से करंट होया उतना ही दूजे ते जाएगा, ठीक है। हुण इस चीज समझो कि इन ओम लॉ वी हैव स्टडीड दैट V इज इक्वल टू IR, है ना। अगर इस रजिस्टर की मैं एक गल तुहानूं बहुत क्लीयर करना चाहता बेटा, जब भी कभी ओम्स लॉ लगाओगे, जिस जगह ते लगा रहे हो उसी जगह दियां, जिस रजिस्टर ते लगा रहे हो उसी रजिस्टर दियां सारे पैरामीटर चकने ने। पैरामीटर मतलब BIR, ठीक है। जिवें देखो मैं लगा के दस रहा, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर दे विच कितना करंट जा रहा, I जा रहा ना, और इहदी रजिस्टेंस कितनी है, R। अगर I और R ये तुहानूं पता नहीं, IR1 तो ये वोल्टेज होगी, ठीक है, पहले दी। दूसरे रजिस्टर दी करंट कितना है, I, रजिस्टेंस कितनी है, R2, तो ये दूजे दी होगी। नेचुरली अलग है ना, क्योंकि I तो सेम है, R1 R2 अलग अलग है। हुण तीसरे रजिस्टर दी IR3, मतलब समझो कि इसनूं वोल्टेज है B1 मिली हुई, इसनूं B2, इसनूं B3। इस पूरी बैटरी ने B वोल्टेज दी है और ये B वोल्टेज अलग अलग होके इन्हां दे रेजिस्टेंसेस दे अनुसार हर रजिस्टर नूं अलग अलग मिल रही है। नैचुरली जिहदी रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, देखो मल्टीप्लाई किया ना IR, I दे नाल ही सारे, जिहदी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उन्हें ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। इन्हीं गल समझ आ गई। Now see, if you will say that in place of these three, I want to apply only one and which should behave just like these three. तो समझो कि तुसी एक RS लगा लिया, ये इन्हां तिन्नां दा रिजल्टेंट है, तिन्नां दे बराबर 1 है, ठीक है, तिन्नां दे बराबर 1 है RS। इहदे विच I करंट गया, इहदे विच भी I जा रहा है, इहदे विच भी I जा रहा है। तो इहदी जो वोल्टेज है वो किवें लिखी जाएगी, I है ना, टोटल वोल्टेज कितने आई, IRS, ठीक है। सेम असी लिखा, ये वोल्टेज है टोटल, ये फर्स्ट दी, सेकंड दी, थर्ड दी, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो है ये किवें लिखी गई, IRS लिख ली, B1 दी लिख ली IR1, IR2, IR3, B3, IR3, I सबना दे कॉमन आया
it is taken out the common and IRS. I will cut the I and RS is equal to this. So but we are saying that resultant resistance in series combination is equal to sum of individual resistance, right? Individual resistance. This is the second one. Voltage ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तीन ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ 1 ਇੱਕ 2 ਇੱਕ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ 6 ਹੈ ਉਹ सबसे ਵੱਡੀ जो है उससे भी ਵੱਡੀ है। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, जितने ਤੁਸੀਂ रजिस्टर लगाए ना सबसे ज्यादा रजिस्टेंस जो है उससे भी रिजल्टेंट ज्यादा होएगा, राइट? क्लियर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशंस। नो पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई एम कमिंग ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, टू कॉमन पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो या दो ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ दो कॉमन पॉइंट ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਸ है ना। इस रजिस्टर ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ such that all bit get the same voltage। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਮ ਹੈ, V सेम है, वोल्टेज सारे ਨੂੰ सेम मिल रही है। जितनी ये बैटरी दे रही है उतनी इसनू उतनी इसनू उतनी इसनू सबना ਨੂੰ सेम वोल्टेज मिल रही है। क्लियर बेटा? नो सी इथों आई करंट बाहर गया है तो आई करंट ने ही एंटर करना है। थोड़ी लैंग्वेज समझावा बेटा, एक नहर है, इस नहर के अगे तुसी इस तरह करके तीन होर नहर बना लिया, ठीक है, अगे, और ये नहर अगे जाके ए मिल रही ने और ए पानी नू बाहर कढ़ रही ने, ठीक है। तुहानू पता है भी जितनी नहर तुसी पतली बनाओगे उतना घट करंट जाएगा, जितनी खुली बनाओगे ज्यादा जाएगा। मतलब रजिस्टेंस हो गया थे, जितनी रजिस्टेंस ज्यादा होएगी, जितनी ज्यादा होएगी उतना ही करंट घट जाएगा। चलो वो तो अगली गल हो गई। फिलहाल सानू ये पता लग गया भी इस नहर से पानी सबना अलग अलग जाएगा। उसी तरह आई करंट इधरों निकल रहा तो इधर अलग जाएगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट का करंट कह लिया, सैकेंड का कह लिया, थर्ड का कह लिया, ठीक है बेटा। नो सी अगर मैं I1 पहले का करंट करना हो तो पहले दी वोल्टेज पहले का रजिस्टेंस मैं तुहानू पहले भी कह चुकिया, जिस रजिस्टर से तुसी अटैक कर रहे हो उसी रजिस्टर का सारा कुछ लिखो। इस रजिस्टर का करंट I1 क्या है ना सी, इस रजिस्टर की वोल्टेज कितनी है B है ना। आप कहा डेफिनेशन दे विच कि ए सेम होंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलती है, पैरेलल दे विच सेम वोल्टेज होएगी, सबनों दी सेम, इदी भी इदी भी इदी भी और इदी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह सेकंड दा करंट, सेकंड दी वोल्टेज सेम, सेकंड दी रेजिस्टेंस, थर्ड दा सेम B/R3। हुण फिर वही समझो, मान लो इन्हां तिन्नां दी जगह असीं एक कल्ला लगाना चाहते हैं जो इन्हां तिन्नां दी तरह बिहेव करे, ठीक है। वो RP है, आई करंट गया तो इहदा जो करंट है आई वो किवें निकलेगा, B वोल्टेज है, इनू B मिली, B/RP। एक बार फिर समझते हैं, इन्हां तिन्नां रजिस्टेंस दा जो सेम तरह बिहेव कर रहा, तिन्नां दे बराबर है, वो RP है, पैरेलल दा रिजल्टेंट। इहदे विच आई करंट गया, इहदे च भी आई गया, B वोल्टेज नू B वोल्टेज मिली तो इहदा आई करंट किवें आया, I = B/RP। हुण एक गल जिवें इत्थे तुसीं लिखी सी, इसी तरह इत्थे करंट सेम है सारिਆਂ च, करंट का सम जो है वो टोटल आएगा। ये टोटल करंट है B/RP, इत्थों लिखिया मैं, और बाकी वैल्यू तुसीं लिख लैनियां ने, B/R V इत्थे कॉमन आके कट गया एंड ये थोड़ा रिजल्टेंट आ गया बेटा, ठीक है। की कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस और रिजल्टेंट है द रेसिप्रोकल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल्स। मतलब मैं एक तो एग्जांपल लवा, मान लो एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/1, R1 कितना है 1, 1/R2 2 है एंड R3 3 है, 6 LCM आ गया एंड दिस इज 11/6 1/RP।
आरपी तो निकल के नहीं आया ना हाल तक, आरपी किमें कटोगे, रेसिप्रोकल ले लो ना, उल्टा कर लिया तो इधर भी उल्टा हो गया 6/11 ओम। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया है 11 5 55 4 अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है। देखो हूँ 0.53 अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 तुसी जोड़े सी, सबसे घट कितना सी 1 ते भी घट आया। तो एक चीज नोट करनी है कि पैरेलल दे विच जो सबसे घट रेजिस्टेंस होता है रिजल्टेंट उसते भी घट होता है पक्का 100%, और सीरीज दे विच रिजल्टेंट मैक्सिमम ते भी मैक्सिमम होता है। ओके बेटा, समझ आ गया बेटा? बेटा हुण मैं थोड़ा जिहा एडवांस स्टडी करा रहा, बड़े ध्यान नाल देखनी है कि सीरीज कंबीनेशंस किस किस तरह की डायग्राम्स होंदी है। देखो मैं सीरीज वाले कुछ एग्जांपल ले लग्या, मतलब एक बैटरी है या सेल ले लिया, चलो एक ए मैं रजिस्टर लगाया और एक ए होर रजिस्टर लगाया और इस तरह करके इन्हों जोड़ लिया, ये सीरीज कंबीनेशन है पैरेलल, ये बेटा सीरीज कंबीनेशन। ये देखो जो इथों करंट गया है जिसमें समझ लो पानी गया, वही पानी इधरों जा रहा, वही इधरों जा रहा और यह बाहर निकला। एक बार फिर देख देना, सेम करंट इज फ्लोइंग इन बोथ, सो दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज। ये नहीं दिखना भी वो पैरेलल च रखे ने, ये देखो भी करंट क्या सेम जा रहा। जिवें एक होर एग्जांपल लावां मैं तुहानूं, एक बैटरी ला ली, दिस इज देखो ए भी सीरीज कंबीनेशन है, R1 R2 R3 सीरीज दे विच ने। ये देखो सेम करंट फ्लो होएगा तीनों। अगर रिजल्टेंट कोई कड्ढण नूं कहंदा है 1 2 3 तो कितना आएगा 1 2 3 6, रिजल्टेंट कितना आएगा 6 आएगा इस केस दे विच, ठीक है। होर एग्जांपल असीं बाद क्लास दे विच भी डिस्कस कर सकते हैं, इस टाइम विच नहीं हो पाएंगे। पैरेलल दे विच मैं एग्जांपल लवां, देखो ये पैरेलल कंबीनेशन है बेटा, ये सेल लग गया ना, इत्थे देखो करंट दो रस्ते ने, देखो इत्थे अलग जाएगा, इत्थे अलग जाएगा, है ना। तो ये पैरेलल दे विच हो गए ने बेटा, ठीक है। एक होर देखो, बेटा मैं तुहानूं कई बार कह रहा भी तुसीं सिर्फ ये देखना है, पानी समझ के चलो भी पानी निकलिया अपने अपने हिसाब नाल जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो इत्थों ते पानी निकलिया, मान लो है ना, पानी निकलिया ते इधर चला गया, फिर वापस आ गया, इधरों गया, देखो अलग जाएगा ना, फिर इत्थे मिल जाएंगे दोनों, I1 इत्थे I2, इत्थे अलग गया और इत्थे जाके बाहर फिर I हो जाएगा। मतलब ये पैरेलल कंबीनेशन है, अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है, समझाया। एक होर लास्ट तो डिस्कस करके वीडियो ਨੂੰ खत्म करूंगा बेटा। हुण ये देखो इत्थों एक करंट आया, ठीक है, इत्थे जाके इत्थे अलग चला जाएगा, इत्थे फिर वापस उतना ही आ जाएगा, इत्थे जाके अलग जाएगा I2, तो एक ही है समझो, देखो इत्थे जाके अलग अलग जाएगा ना, तो ये पैरेलल कंबीनेशन है बेटा। थैंक यू वेरी मच।